So welcome back to my new video, and in this video we are going to discuss about the new disease, a viral disease, which is hepatitis. So basically the word hepa means liver. The word hepa means liver, and if we talk about the titus, we already know that titus means the inflammation. Infla inflammation. So अगर हम इसको कंप्लीट लिखें, so what is hepatitis? So hepatitis as uh, we can define as viral disease viral disease which which caused inflammation of liver and caused by hepatitis virus. HV means hepatitis virus cause a disease called, एक डिजीज कॉज करते हैं जिसको हम बोलते हैं हेपाटोट्रॉपिज्म. हेपाटो हेपाटोट्रॉपिज्म एक डिजीज है. हेपाटोट्रॉपिज्म एक डिजीज है जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इन्फेक्शन ऑफ लिवर. इसका मतलब होता है इन्फेक्शन ऑफ लिवर. सो इन्फेक्शन ऑफ लिवर मीन्स लिवर का इन्फेक्शन होना. दिस इज कॉज्ड बाय हेपाटोट्रॉपिज्म, जो होता है हेपेटाइटिस वायरस जो कॉज करता है. और इसमें हेपेटाइटिस जो हेपेटाइटिस की टाइप्स हैं, वी कैन से द वायरसेस ऑफ हेपेटाइटिस सच एज बी, सी एंड डी. सो हेपेटाइटिस HV, hepatitis virus are taxonomically taxo taxonomically taxonomically unrelated. ये taxonomically unrelated means इनके classification, they are not in a from a single classification or a single group. ये taxonomically unrelated है, but फीचर्स, जो इनके फीचर्स और द फंक्शन जो डिजीज कॉज करते हैं आर मोस्टली सिमिलर, बट फीचर्स आर मोस्टली कॉमन. ये जो फीचर्स होते हैं वो मोस्टली हमारे पास कॉमन होते हैं सब वायरस जो HIV के हेपेटाइटिस के वायरसेस हैं. हेपेटाइटिस वायरस सच एज हेपेटाइटिस A, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, with that we have hepatitis D, we have hepatitis E, we have hepatitis F, we also have hepatitis G. बट जो हमारे पास ये दो हैं हेपेटाइटिस F एंड G, दिस बोथ आर हाइपोथेटिकल वायरस. वो क्या है? हाइपोथेटिकल वायरस. ये दोनों हाइपोथेटिकल वायरस हैं बट आर स्टिल इन रिसर्च. सो आज हम इन दोनों को तो डिस्कस नहीं करेंगे, बट वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज 5 हेपेटाइटिस वायरसेस. एंड among them, the hepatitis B is the most unique because it is having the DNA as their genetic material, but rest of them are having RNA. So that is why it is also unique, and it is a, ये हमें इसको कहते हैं रेट्रो वायरस, जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का फंक्शन होता है. आर कॉल्ड रेट्रो वायरसेस. सो हेपेटाइटिस B is a retroviruses. So let's discuss these
hepatitis these viruses. So here we are with the diagram. हमारे पास ये diagram एक show हुई है. तो first we have hepatitis A, जिसमें हमारे पास होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए. सिंगल स्टैंडर्ड हमारे पास होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है. एंड विद दैट इसमें दिस इज नॉन इन्वेलप्ड. यू कैन से इट इज नॉन इन्वेलप्ड और वी कैन से इट इज अ नेक्ड वायरस आल्सो कॉल्ड नॉन इन्वेलप्ड. सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है और नॉन इन्वेलप्ड है. Hepatitis A is having single strand RNA as a its genetic material and ये non-enveloped होता है. The transition state transmitted जो ये mode of transmission होता है, the transmission is done by fecal or a root. ये fecal or a root के जरिए transmit होता है. With that जो इसके symptoms होते हैं, इसके symptoms include loss of appetite, diarrhea, fever, nausea, malaise, jaundice. These are some of the symptoms which are caused by hepatitis A, and its recovery time is 6 weeks, or sometimes in some of the books there is written 2 month, but sometimes it can also goes into 6 months, and it is not causing any permanent disease or permanent damage to liver. So no permanent damage to liver. If we talk about its prevention, so we can prevent this hepatitis A by वैक्सीन. हम वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकते हैं. वैक्सीन इज हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन अवेलेबल है एंड इट डज नॉट गो इन द क्रॉनिक डिजीज. क्रॉनिक इन्फेक्शन नहीं करता. मैं अगर ये लिखूँ के डज नॉट कॉज chronic does not cause chronic infection. ये chronic infection नहीं करता बट ये acute infection करता है. ये क्या cause करता है? ये does not cause chronic infection but ये cause करता है acute infection. We can say right. ये acute infection cause करता है acute infection INF. So ये acute infection cause करता है. It does not go in the chronic stage. Chronic stage में ये नहीं जाता. Now अगर हम hepatitis B पे आए तो hepatitis B is the most unique virus in which we have double stranded DNA but is not permanently. ये partial double strand DNA होता है. हम लिख रहे हैं DNA वायरस तो double stranded DNA but partially क्या है? partially double stranded DNA होता है इसके पास. And this virus is also called serum virus. Hepatitis B virus is also called सीरम वायरस. इसको हम सीरम वायरस भी कहते हैं. और जो हेपेटाइटिस बी वायरस के सिम्टम्स होते हैं और ये हम कह सकते हैं इट्स यू कैन से मोड ऑफ ट्रांसमिशन. सो सेक्सुअल कांटेक्ट से ये ट्रांसमिट हो सकता है. सेक्सुअल कांटेक्ट से ट्रांसमिट हो सकता है. कंटेमिनेटेड नीडल्स also spread via infected tears or saliva. These are the such ways by which it is transmitted. और अगर हम इसकी इन्फेक्शन या इनके सिम्टम्स की बात करें तो cirrhosis of liver, cirrhosis in way of कह सकते हैं कि लिवर कैंसर सेल्स जो ग्रोथ होती है, कैंसर सेल्स की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है जिसको हम कार्सिनोजेनेसिस भी कहते हैं. मींस जेनेसिस ऑफ कैंसर सेल. जेनेसिस ऑफ कैंसर सेल को हम कार्सिनोजेनेसिस भी कहते हैं. सो इससे ये भी डिजीज़ होती है. और फॉर वी कैन से प्रिवेंशन इट्स वैक्सीन इज़ ऑल्सो अवेलेबल एज हेपेटाइटिस बी और ए की दोनों की वैक्सीन अवेलेबल है. और दिस इज़ अ रेट्रो वायरस. मैंने ऊपर भी बताया क्या है. ये रेट्रो वायरस है. रेट्रो वायरस ये क्या है? रेट्रो वायरस है. और अगर हम और इसकी बात करें तो हमारे पास हेपेटाइटिस डी वायरस है वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है हेपेटाइटिस बी वायरस. अगर हेपेटाइटिस बी वायरस किसी बॉडी में होगा तो हेपेटाइटिस बी होगा तो डी इन्फेक्ट करेगा. अदरवाइज डी विल बी नॉट इन्फेक्टेड. हम वो आगे पढ़ेंगे.
और हेपेटाइटिस बी इज़ मोस्टली ट्रांसमिटेड, जो इसके 3 तो लिखे हुए हैं, बट वन मोर आई वांट इंक्लूड दैट इट्स ट्रांसमिटेड बाय बॉडी फ्लूइड. It is transmitted by body fluid. It is transmitted by body fluid. Or one more thing about the hepatitis B, that इसकी भी वैक्सीन अवेलेबल है, और दिस गोज इनटू अ क्रॉनिक स्टेज. दिस गोज इनटू अ क्रॉनिक स्टेज. ये क्रॉनिक स्टेज में कॉज करता है. ये क्या करता है? क्रॉनिक स्टेज में जाता है. मीन्स इट कॉज क्रॉनिक इन्फेक्शन, जिसमें कैर्सिनोजेनेसिस आ जाती है, लाइक फॉर्मेशन ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल्स, और cirrhosis of liver, which means growth of cancer cells. Now if you move forward toward the hepatitis C disease, so hepatitis C disease is caused by hepatitis C virus. इसके पास भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए which is positive sense, and it is mostly primarily transferred. Mode of transmission is blood to blood transmission. इसकी blood to blood transmission होती है. It can also transmitted by body fluid, but प्राइमर जो इसकी प्राइमरली जो ये ट्रांसमिट होता है वो होता है ब्लड टू ब्लड ट्रांसमिशन होती है. ये हेपेटाइटिस बी एंड सी बोथ आर मोस्टली सिमिलर, बिकॉज ये भी लिवर क्रोसिस करते हैं, लिवर कैंसर की ग्रोथ करते हैं. इट ऑल्सो गोज इन टू इट ऑल्सो कॉज क्रॉनिक इन्फेक्शन. ये भी क्रॉनिक इन्फेक्शन कॉज करते हैं, क्रॉनिक इन्फेक्शन कॉज करता है. और समटाइम ये एसिम्टोमेटिक हो जाता है, मतलब इसके सिम्टम्स कुछ जाहिर नहीं होते. जो इसके मेन सिम्टम होते हैं वो जाहिर नहीं होते, बट समटाइम्स कुछ फ्लू लाइक सिम्टम्स जाहिर होते हैं, बट मेन जो सिम्टम होते हैं दैट आर नॉट विजिबल, और हम बोलते हैं कि एसिम्टोमेटिक हो जाता है समटाइम्स. तो हेपेटाइटिस सी वायरस की वैक्सीन हमारे पास स्टिल अनअवेलेबल है. सो वी कैन प्रिवेंट इट बाय सैनिटेशन एंड जो कंटेमिनेटेड थिंग्स होती हैं उनसे दूर रह के हम वी कैन प्रिवेंट आवरसेल्फ, वी कैन ट्रीटमेंट यही है इसका. और सम ऑफ द we can say drugs we have, like alpha interferons and ribavirin are some of the treatment drugs for prevention of hepatitis C. So interferon alpha and ribavirin, these are the two drugs which are मेन, और वी कैन से ये 2 ड्रग्स हैं जो हेपेटाइटिस सी को प्रिवेंट कर सकती है, बट नो वैक्सीन है. मैं लिख देता हूँ कि नो वैक्सीन अवेलेबल. अभी तक कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है फॉर हेपेटाइटिस सी के लिए, कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है. और द रिकवरी टाइम ऑफ दिस इज ऑलमोस्ट 6 मंथ. ये 6 मंथ में रिकवर होता है. इट कैन ऑल्सो गोज द टाइम पीरियड कैन ऑल्सो बी इंक्रीज, बट जनरली जो टाइम पीरियड इसका दिया हुआ होता है मोस्टली बुक्स में वो है 6 मंथ का. If you talk about the D virus, hepatitis D is a disease which is caused by hepatitis D virus, or this is mostly connected with the hepatitis B. ये बी से कनेक्ट होता है बिकॉज जो हेपेटाइटिस डी होता है इट डज नॉट फॉर्म इट्स प्रोटीन कोट. ये जो अपनी कैप्सिड बनता है जिसमें न्यूक्लिक एसिड होता है, ये हेपेटाइटिस डी अपनी यू कैन से वो अपनी कोट नहीं बनाता. इट डज नॉट सिंथेसाइज प्रोटीन और इट डज नॉट सिंथेसाइज इट्स कोट. इट बोरो द कोट फ्रॉम हेपेटाइटिस बी एज अ पायरॉन. ये कोट अपना बोरो करता है हेपेटाइटिस बी से, और देन इट कैन इन्फेक्ट. इट मीन्स hepatitis B is dependent. Hepatitis B is dependent on hepatitis D is dependent on hepatitis B. Can only be infected with hepatitis D if you have hepatitis B already. इसका मतलब है कि hepatitis D completely depend करता है B पे. अगर B होगा तो D इफेक्ट करेगा, नहीं तो D will be not affecting. Hepatitis D reside inside hepatitis B. मतलब hepatitis D में अंदर हेपेटाइटिस बी होगा, बिकॉज ये उसका कोट बोरो कर रहा है. ग्रेटर रिस्क ऑफ लिवर फेलियर. हेपेटाइटिस डी इज द मोस्ट डेंजरस वायरस. हेपेटाइटिस डी वायरस इज द मोस्ट डेंजरस, जो कॉज करता है लिवर फेलियर. इंक्रीज रिस्क प्रोग्रेशन टू लिवर क्रोसिस, मतलब कैंसर सेल्स की ग्रोथ और बढ़ जाती है.
If we talk about the transmission, so contaminated needles and sexual contact से ये ट्रांसमिट हो सकता है. Now if we go toward the hepatitis E, so hepatitis E is mostly common as mostly same as hepatitis A. hepatitis A की तरह ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड है, RNA. hepatitis D भी RNA ही है. hepatitis B भी, D भी RNA और E भी RNA, all are RNA except hepatitis B. तो जो E है इसके पास भी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, और ये भी ट्रांसमिशन इसका क्या है, फैकल और रूट, सेम एज हेपेटाइटिस ए वायरस की तरह ये भी ट्रांसमिट होता है फैकल और रूट की तरह. इसकी भी 2 to 8 वीक ड्यूरेशन है, मतलब ऑलमोस्ट 2 मंथ हो जाती है. सिम्टम्स जॉन्डिस, नोजिया, फटीग, और इट समटाइम्स गो इन ये क्रॉनिक स्टेज में जाता है जब कोई वीक इम्यून सिस्टम हो, ऐसा जैसे प्रेगनेंसी वुमेन, जिसके लिए बहुत ग्रेटर रिस्क होता है. बट मोस्ट जनरली जब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस ई की, हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई, ये दोनों एक्यूट इन्फेक्शन करते हैं. मीन्स इतना ज़्यादा कोई इन्फेक्शन नहीं होता, एक्यूट इन्फेक्शन करते हैं. और हेपेटाइटिस बी और सी ये दोनों क्रॉनिक इन्फेक्शन करते हैं, विच मीन्स सिरोसिस ऑफ लिवर, या वी कैन से कार्सिनोजेनेसिस. क्रॉनिक इन्फेक्शन करते हैं, ये क्रॉनिक इन्फेक्शन करते हैं. विद दैट इनके ये कुछ सिम्टम्स भी होते हैं जो हमने पढ़े पहले. और अगर हम वैक्सीन की बात करें तो ए और बी की हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है. वैक्सीन अगर हम ई और सी की बात करें तो नो वैक्सीन, हमारे पास अभी तक इनकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है. और ये मोस्टली ट्रीट होती है अल्फा इंटरफेरॉन और राइबोवायरिन, कुछ ड्रग्स हैं जो बाय विच इट कैन बी प्रिवेंटेड. एंड मतलब मोस्टली दीज 2 viruses, hepatitis A and E, hepatitis B, D and are related. अगर B होगा तो D relate करेगा, D होगा means hepatitis D totally depend upon the hepatitis B. One more thing that hepatitis जो A वायरस है वो मोस्टली चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है, और ये बड़ों को भी कर सकता है. बट जो मोस्टली हम जो पढ़ते हैं वो हमारे पास है हेपेटाइटिस जो ए है वो चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है. तो मोस्टली चिल्ड्रन को अफेक्ट करते हैं. अगर हम टोटली ओवरऑल अगर हम हेपेटाइटिस के वो देखें, वी कैन से सिम्टम्स, तो हेपेटाइटिस सिम्टम्स हमारे पास फीवर आ जाता है, लाइक फीवर आ जाता है, डार्क यूरिन, जॉन्डाइस, और हमारे पास आ जाता है वोमिटिंग, फटीग. With that we also have loss of appetite, मतलब भूख नहीं लगती, loss of appetite. These are some of the general or common symptoms of hepatitis of all diseases. hepatitis की सारी वायरस, हेपेटाइटिस वायरस जो सबकी ये कुछ कॉमन है. और ट्रीटमेंट हमारे पास आ जाता है प्रॉपर सैनिटेशन हम कह सकते हैं, प्रॉपर सैनिटेशन. और हमारे पास आ जाता है, हमारे पास वैक्सीन्स हैं फॉर फॉर हेपेटाइटिस ए एंड बी. अगर हम बात करें वैक्सीन फॉर ए एंड सी, और फॉर बी एंड ए एंड बी के हमारे पास है, फॉर सी एंड डी की बात करें तो दीज आर मोस्टली ड्रग्स से ये प्रिवेंट किए जा सकते हैं, जिसमें आ जाता है इंटरफेरॉन अल्फा और राइबोवायरिन
ribavirin. These are the two drugs which are uh, used to prevent these both C and D hepatitis virus. और हम इसको prevent, we can prevent sexual contact में नहीं आना if you think that you are infected by this virus. And these are some of the treatments, we can say, how we can prevent the hepatitis disease.